Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So only 4-5 days are left for our IBPS PO main examination, and we have to focus it in a systematic manner. Daily, we are trying to put you on focus how to prepare for this examination. So today you will attempt one mock test from the link that is available in description and comment column. This is very good mock test which I suggested you. You should attempt it. If you have not subscribed till now, subscribe it today. It is going to help you. Now, strategy before examination is very important to clear any examination. Usually before examination, we all become very tense, and sometimes anxiety is there, and sometimes negative thoughts also come in our mind. Because in competitive world, despite our best efforts, sometimes we succeed, sometimes we fail. And that feeling of fear normally damages us. So the best thing is take proper rest during these days along with study. That always helps you. Taking proper rest is as crucial as study. So after attempting the mock test, you should take proper rest and then define your journey for the day. So I have suggested you a very good mock test. Attempt the mock test. After attempting the mock test, go to the solution. Now once you go to the solution and analysis part of the mock test, you come to know where you have fared well. That gives you encouragement. But there are areas where still you are lacking. You should note down these topics in your copy. Noting down is very important. Some people miss this step. But this step is very crucial because this is a step of planning. So if we know how to plan and how to execute, we can be successful in life, and that too in all examination. So when we attempt the mock test and we come to know that these are our weak areas, we should note down. Say you are weak in percentage. Note down. You are weak in profit and loss. Note down. You are weak in man and work. Note down. A person can be weak in speed. Note down. Type of English where you are weak, or reasoning, what type of questions you are unable to attempt. Note down. Then make a timetable. In that timetable, you should cover each topic. The moment you are able to cover the topic, strike down the topic from your copy. So this way you will not miss any topic. You will be able to mark up every topic and improve. So a systematic approach to study and proper rest can lead you to victory. So since few days are left, be energetic, be relaxed, and focus on study. If you adopt this strategy, ultimately you will be winner. So God bless you with success. Don't have any tension. Competition is wide open. And if you have prepared well, definitely you are going to win. So my advice is take rest. Some people are saying, sir, no, we are tired and we are not able to focus on study. What I should do? I always advise take rest. It is not wastage of time. Taking rest means you are regaining your energies. It is also part of your study plan. So frequent rest, frequent study makes you successful in ultimate examination. So God bless you with success. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब हमारा IBPS PO का एग्जाम 10 और 11 अक्टूबर को है, तो 4-5 दिन बचे. ये 4-5 दिन हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसी पर हमारी सक्सेस निश्चित है. तो हमें क्या करना है, हमें इस दौरान बहुत ही ढंग से टाइम को व्यतीत करना है. ढंग का मतलब है कि हमें प्रॉपर रेस्ट भी लेना है और मेहनत भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है. कुछ लोग इन दिनों में अपने को ओवर एक्सर्ट कर लेते हैं. वो आपने नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपके अंदर एंजाइटी बढ़ती जाएगी, टेंशन बढ़ती जाएगी, कई बार घबराहट भी बढ़ जाती है. इन सब को दूर करने का तरीका है एक अच्छे ढंग से रेस्ट. तो जो भी आप करें उसके बाद साथ साथ रेस्ट जरूर करें, इसी से आपको सफलता मिलेगी.
अब मैंने आपको एक अच्छे मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है वो आज इसका एक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लें। मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद आप इसका सोल्यूशन देखिए, इसका एनालिसिस देखिए। बहुत एरियाज होंगे जहां आपने अच्छा परफॉर्म किया, वहां पर आपको अब मेहनत की जरूरत नहीं है, पर कुछ एरिया ऐसे भी होंगे जो आपके गलत हो गए या आप अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए। इन टॉपिक्स को आप एक कॉपी पे नोट करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। काफ़ी लोग इस स्टेप को मिस कर जाते हैं। उन्हें लगता है हमने देख लिया, हमें याद हो गया, क्या क्या हमें नहीं आता। ऐसा नहीं होता। जितना आप प्लानिंग को ठीक ढंग से करेंगे और एग्जीक्यूशन ठीक ढंग से करेंगे, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो आपने क्या करना है, इन टॉपिक पर डायरी पे नोट करना है। मान लो आपका परसेंटेज नहीं हुआ, परसेंटेज नोट कर लीजिए। प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस नोट कर लीजिए। स्पीड नहीं हुआ, स्पीड नोट कर लीजिए। जो भी टॉपिक है वो नोट करिए। इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन गलत हुए वो नोट करिए। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं उसको नोट करिए। जब आप नोट कर लेते हैं तो क्या होगा, अब जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे और अपनी कॉपी से काटते जाएंगे। तो इस तरीके से कोई टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाए हो, क्योंकि जितना हम प्लान कर लेंगे और उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे, यही हमें कामयाबी पे लेके जाएगा। तो जो मैं बार बार आपको कहता हूँ डायरी पे नोट करो, इसकी सिग्निफिकेंस है। प्लानिंग में हर माइन्यूट स्टेप की एक सिग्निफिकेंस है। उस सिग्निफिकेंस को आप भुला नहीं सकते हैं। तो अब आपने डायरी में नोट कर लिया, आपने उस टॉपिक को पढ़ा। अब टॉपिक कहाँ से पढ़े? टॉपिक पढ़ने का तरीका होता है जो हमारे स्कूल लेवल की किताबें हैं वहां से पढ़ना चाहिए। अब ये कहाँ से मिलेंगी? गूगल सर्च में मिल जाएंगी। मान लो आपने टॉपिक डाला परसेंटेज, एनसीईआरटी बुक, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से पढ़िए। ऐसे इंग्लिश के लिए मैंने आपको ग्रामर बुक बताई हुई है, उस ग्रामर बुक से वो डिस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ लीजिए। रीजनिंग के अंदर जिस तरह की रीजनिंग गलत हो रही है वो टॉपिक गूगल में सर्च करिए और गुड बुक लिखिए। आपको वो ऐसी बुक पे ले जाएगा जहां उस तरह के रीजनिंग को सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या है ये सिखाई हुई है। तो हमने क्या है, तकनीक सीखनी है, टेक्निक सीखनी है, रटना नहीं है। जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी उतना हम एग्जाम के नजदीक बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि हमें शांत रहना है, प्रॉपर रेस्ट करना है, प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है। घबराना नहीं है। काफी लोगों को इन दिनों के अंदर फीवर हो जाता है, कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, कई लोगों को नींद आनी बंद हो जाती है। ये सब लक्षण होते हैं स्ट्रेस के। जब हम अधिक स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटने लगती हैं, और वो क्या करता है, एग्जाम में हमारी परफॉर्मेंस को डिमिनिश कर देता है। तो यदि हम प्रॉपर रेस्ट ले लेते हैं, इन चीज़ों से बच जाते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।